Hello students, today we are going to start the first chapter of our social science heritage of India. India is a land of ancient culture, ancient Indian scripture. Now what is India? इंडिया में क्या है तो इंडिया बहुत एक पुरानी संस्कृति वाला देश है और एक बहुत पुरानी रीति रिवाज वाला देश है. विष्णु पुराण स्टेट उत्तर यत समृद्धस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणा वर्षतद भारत नाम भारती यंत्र ससति. Now the slok is written in our Vishnu Puran and it is stated that it means India extend from the Himalaya in the north and to the Indian Ocean in the south. मतलब इंडिया की शुरुआत कहाँ से होती है तो हिमालय फ्रॉम द नॉर्थ एंड इट एक्सटेंड अप टू मतलब कहाँ जाके ख़त्म होता है तो इट एक्सटेंड अप टू द इंडियन ओशन इन द सी. It is said that a new descendants are called Indian. मतलब the people who live from the north of Himalaya to the south of Indian Ocean, from east to west, that people are live in India is known as Indians. In the beginning of any auspicious ceremony, Bharatavarsha, Bharatkhand, Jambudvip and Aryavarta etc. words are used while taking resolution. मतलब in India when we do any auspicious ceremony मतलब हम जब किसी नए काम की शुरुआत करते हैं या किसी पवित्र काम की शुरुआत करते हैं our ऋषि मुनीज और our पंडित will use the word like भारतवर्ष भारतखंड for taking any resolution. मतलब हम जब किसी नई काम की शुरुआत करते हैं तो ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है and that is our Indian. Our country is gifted with the natural boundaries. Himalaya in the north, sea in the east, west and the south. As we know that India is covered with the natural boundaries on all its four sides. In the north we have the Himalaya, in the east, west and the south we have the Indian Ocean. From all over the world, different countries mesmerized by the Indian prosperity and came to trade, to settle and to mingle with the Indian culture. Now India, वर्ल्ड की जो कंट्रीज थी वो इंडिया से मिसप्राइज दैट मीन्स अट्रैक्ट होकर इंडिया आती है. वो इंडिया क्यों आती है? टू ट्रेड मतलब बिजनेस करने, टू सेटल यहाँ पे रहने के लिए एंड टू मिंगल विद द इंडियन कल्चर. मिंगल मीन्स टू मिक्सड अप विद द इंडियन culture. Due to the mutual exchange, many changes has been seen in our culture. Now due to mutual exchange, that means the people came from the countries of other of the world has mixed their culture with the Indian culture. Suppose मान लो कि वर्ल्ड की कोई कंट्री इंडिया में आती है सेटल होने के लिए तो उनका कल्चर और इंडियन कल्चर दोनों क्या हो जाता है? म्यूचुअल एक्सचेंज. मतलब वो एक दूसरे में घुल मिल जाता है एंड फॉर दैट देर आर मैनी चेंजेस सीन इन अवर कल्चर. इसलिए हमारे कल्चर के अंदर टाइम टू टाइम बहुत चेंजेस देखने को मिले हैं. In this way, our heritage is transformed from generation to generation and it is continuously progressive. और हमारा जो हेरिटेज है वो जनरेशन टू जनरेशन क्या है? आगे बढ़ता गया है. जैसे फोर फादर ने हमारे फादर को दिया, फादर हमें देगा. इन दैट वे आवर हेरिटेज इज ट्रांसफॉर्म, आवर कल्चर इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड टू टिल टुडे इट इज ट्रांसफॉर्मिंग from our forefather. Rich and varied heritage. Our motherland has bestowed, that means blessed, rich and varied heritage to us so as to the world. Motherland मतलब जो हमारी नेचर है उसने हमें ब्लेस किया है. किससे? तो रिच एंड वेरिड हेरिटेज. मतलब हमें जो हेरिटेज दिया है वो बहुत रिच है और उसके अंदर बहुत सारी वैरायटी है. तो ये हेरिटेज मदरलैंड ने हमारे साथ साथ पूरे वर्ल्ड को भी दिया है. इंडियन कल्चर हैव बीन ट्रेड ओरिएंटेड एंड पीस लविंग. अब इंडियन का जो कल्चर है मतलब हमारी भारतीय संस्कृति क्या बोलती है कि हमारा जो भी मोटिव है वो हमेशा क्या रहा है? ट्रेड ओरिएंटेड. मतलब हम क्या करते हैं? बिजनेस करना चाहते हैं अलॉन्ग विद अ पीस लविंग. मतलब हम सारा काम किससे करेंगे? शांति से करेंगे. सत्य, चित एंड आनंद आर रिलीज्ड फ्रॉम द इंडियन कल्चर. सत्य दैट मीन्स ट्रुथ, चित मतलब awareness and anand means joyfulness. This three concept has come and that is from the Indian culture. Beside this, Indian culture prospered with the mutual exchange of different culture of other country which came to India and settle here. अब इसके साथ साथ क्या हुआ? जो वर्ल्ड की कंट्री इंडिया में आई और यहाँ के सेटल हो गई, उन्होंने अपने कल्चर को भी इंडियन कल्चर के अंदर मिक्सअप कर दिया और हमारे कल्चर ने एक नया फॉर्म लिया और हमारा कल्चर और क्या होता गया? और भी बड़ा होता गया. We have accepted the value of the non-violence and peace which have been adopted and admired by the world. अब
अब इंडियन कल्चर क्या बोलता है, दैट वी ऑलवेज वांट अ नॉन वायलेंस एंड द पीस, मतलब हम किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहते, हमें शांति चाहिए। ये हमारा इंडियन कल्चर है और हमारे इसी कल्चर को पूरे वर्ल्ड ने अपनाया है। People right from the beginning of the Indus Valley civilization till today have made our country rich and wealthy with their intellectuality, ability, talent and the skills. अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जहाँ से हमारे इंडियन कल्चर की शुरुआत हुई है, वहाँ से लेकर आज तक जो इंडियन पीपल्स है उन्होंने अपनी एबिलिटी, इंटेलेक्चुअलिटी, दैट मीन्स देयर एबिलिटी टू थिंक, फिर उनकी जो स्किल्स है, उनका टैलेंट है, उसके बेस पे हमेशा हमारे इंडियन कल्चर को क्या किया है, आगे ही बढ़ाते गए हैं। उन्होंने इसके अंदर बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। इन इनन्यूमरेबल स्कॉलर, थिंकर, आर्टिस्ट, आर्टिशियन, सेक्स, scientist and historian have contributed to the growth and development of our culture। मतलब हमारे जो इनन्यूमरेबल स्कॉलर्स है, थिंकर है, हमारे जो साधु थे, संत थे, इन सब ने, हमारे साइंटिस्ट है, फिर हमारे हिस्टोरियन है, इन सब ने कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कल्चर के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है। What is culture? Culture is a sum of habits, value, custom, tradition and conduct of lifestyle of a human। अब कल्चर क्या है, तो हमारी जो आदतें हैं, हमारी वैल्यूज़ है, हम जिस रीति रिवाजों को ध्यान में रख के आगे बढ़ते हैं, हमारा जो परंपरा है, इन सब की वजह से हमारी जो लाइफस्टाइल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कल्चर। कल्चर इज़ अ टोटल ऑफ हैबिट, वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशन एंड आइडियल्स लीडिंग ह्यूमन्स टू द हाइएस्ट लेवल। अब कल्चर मतलब कि जो हमारी हैबिट्स है, वैल्यू है, इन सब का सम है, मतलब ये सारा मिलकर ही कल्चर बनता है। हमारी जो ट्रेडिशन है, हमारी वैल्यूज़ है, हमारे जो हैबिट्स है, इन सब को मिलकर क्या बनता है, कल्चर बनता है। और कल्चर की वजह से हमारी जो लाइफस्टाइल है वो कहाँ पे लेकर जाते हैं, हम हाईएस्ट लेवल पे लेके जाते हैं। कल्चर मीन्स अ वे ऑफ अ लाइफ। कल्चर मतलब हम हमारी लाइफ कैसे जीते हैं। इट मेड अप ऑफ द चेंजेस दैट अकर इन आवर पब्लिक लाइफ। अब इसके अंदर चेंजेस भी है, मतलब हमारी पब्लिक लाइफ में जो हमारे साथ चेंज होता है वो भी हमारे एक कल्चर का ही हिस्सा है। सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अ डिफरेंट सोसाइटीज़, मतलब हर एक सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स है, उसको भी हम कल्चर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कल्चर ऑफ डिफरेंट स्टेट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कल्चर ऑफ नॉर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द साउथ कल्चर, तो बट दैट इज़ अ कल्चर, फिर भले वो एक दूसरे से अलग है, बट दैट इज़ द culture of particular state or particular region। Cultural heritage of India। Indian history is thousands of the year old। as we know that हमारा इंडियन कल्चर बहुत पुराना है। We say in our school pledge, I love my country and I am proud of its rich and varied heritage। हम हमारी प्लेज में बोलते हैं कि मैं मेरे देश से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे अपना जो रिच एंड हेरिटेज है उसके ऊपर मुझे बहुत प्राउड है। Now what is a heritage? In this context, heritage of a precious gift from our motherland to the whole world about the mysteries of the human life। अब heritage क्या है, तो जो हमारी motherland है, that means nature ने जो हमें दिया है उसे हम क्या बोलते हैं, हेरिटेज। और वो हेरिटेज क्या है, मिस्ट्रीज ऑफ द ह्यूमन लाइफ, मतलब ह्यूमन लाइफ की बहुत सारी मिस्ट्रीज है, दैट हाउ द ह्यूमन बींग्स लिव इन एंशियंट टाइम, हाउ दे लिव टुडे एंड हाउ दे विल लिव इन अ फ्यूचर। दिस इज द मिस्ट्री। सो दिस इज अवर हेरिटेज एंड दैट इज गिफ्टेड बाय अवर मदरलैंड टू अस। अलॉन्ग विथ दैट, हेरिटेज मीन्स अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम अवर फोर फादर टू अस। अब एक हेरिटेज ऐसा है जो हमें मदरलैंड, दैट मीन्स हमारा नेचर हमें देता है, और दूसरा हेरिटेज वो जो हमारे फोर फादर है, मतलब जो हमारे पूर्वज हमें देकर गए हैं, दैट हेरिटेज इज ऑल्सो नोन एज अ कल्चरल हेरिटेज एंड दैट इज गिफ्टेड बाय आवर फोर फादर टू अस। Now we divided heritage into two divisions: national heritage of India and cultural heritage of India। In a heritage, now first we will study about the natural heritage of India। The result of the close relationship between nature, environment and a human life is a natural heritage। मतलब the human के साथ जो नेचर का रिश्ता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, एनवायरमेंट एंड द ह्यूमन लाइफ, मतलब हम कहीं ना कहीं किसके साथ जुड़े हुए हैं, नेचर और एनवायरमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, एंड द थिंग दैट वी आर लिंक्ड विद, दैट इज नोन एज द नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। सेकेंड, नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज़ अ यूनिक एंड वैरिड। अब इंडिया का जो नेचुरल हेरिटेज है वो हमेशा यूनिक रहा है और वैरिड रहा है। वैरिड दैट मीन्स इट इज़ हैव अ वैराइटीज ऑफ नेचुरल हेरिटेज इन अवर इंडिया।
It includes feature like mountain, forest, desert, rivers, streams, sea, tree, plants, creeper, flower, leaves, insect, and a varied landscape, वाइल्ड रेंज ऑफ मिनरल्स, वेजिटेशन, प्लांट्स एंड द एनिमल्स. अब हमारे पास नेचुरल हेरिटेज में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एनिमल्स है जो कहीं नहीं पाए जाते, यहाँ पाए जाते हैं. फिर बहुत सारे ऐसे वेजिटेशंस है जो पूरे वर्ल्ड को यूज़फुल होती है. सो हमारे पास ऐसे बहुत सारी नेचुरल हेरिटेज है. वी ट्रीट नेचर विद द रिस्पेक्ट एंड अ फेथ. हमें हमेशा हमारे नेचर को कैसे ट्रीट करना चाहिए, तो रिस्पेक्ट के साथ एंड फेथ के साथ. द एग्जाम्पल ऑफ अवर क्लोज रिलेशन विद द नेचर इन द स्टोरी ऑफ द पंचतंत्र एंड जातक टेल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन. अब हमारा जो हमारे नेचर के साथ रिलेशन है उसको हमारी स्टोरीज में भी मेंशन किया गया है. दैट इन द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, हम जब पंचतंत्र की कहानियाँ सुनते हैं या जातक टेल्स की कहानियाँ सुनते हैं तो उसके अंदर हमारा जो नेचर के साथ रिश्ता है उसे वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है. Our classical and a folk music and a several rags are based on the prahar period of the day. अब हमारा जो म्यूजिक है क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक वो भी कहीं ना कहीं किसके साथ जुड़ा है, नेचर के साथ. मतलब दे आर कनेक्टेड विद द प्रहर, अ फॉर्म ऑफ द डे. इट्स अ पीरियड ऑफ अ 3 आवर दैट इज नोन एज अ प्रहर. तो उसके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है हमारे जो राग्स है, हमारे जो फोक म्यूजिक है, हमारा जो क्लासिकल म्यूजिक है वो. सो दैट इज ऑल्सो वी कैन से इट इज़ अ टाइप ऑफ अ हेरिटेज. Similarly, Ayurveda, Unani and the natural cure are also totally based on the nature. अब हमारी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, उनानी होती है, and the natural cure with the help of which we can cure a many diseases. So वो भी किसके साथ connected है? It is also connected with the environment and the nature of our motherland. नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इंक्लूड्स लैंडस्केप, रिवर, वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ. मतलब हमारा जो नेचुरल हेरिटेज है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और इसके अंदर कौन सी चीज़ इंक्लूड होती है, दैट इज़ द लैंडस्केप, रिवर, वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ. First, we will study about the landscape. Beautiful landscape are generally formed due to the different shapes of the land. अब जो लैंडस्केप है वो कैसे बनते हैं, तो जो हमारे लैंड है उसके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, डेजर्ट, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द लैंडस्केप. तो वाई दे फॉर्म, बिकॉज देर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ अवर लैंड. फॉर एग्जाम्पल द हिमालय इज द लैंडस्केप. यहाँ पर किसका एग्जाम्पल दिया गया है हमें, हिमालय का. इट इज़ एंडोर्ड यूजफुल वेजिटेशन एंड अ मिनरल्स टू द इंडियन एबिडेंटली. अब हिमालय ने हमें क्या दिया है, तो हमें उसने बहुत सारे मिनरल्स दिए हैं, बहुत सारी नेचुरल वेजिटेशन दी है जो हमें बहुत तरीक़ों से हम उसे यूज़ कर सकते हैं. Strange birds, animals, mountain peak covered with a snow, brimming river are the gift of the Himalaya. और इसके साथ साथ हमें हिमालय ने क्या दिया है, तो बहुत सारे से स्ट्रेंज बर्ड्स है, एनिमल है जो सिर्फ हिमालय में देखने मिलते हैं. अलॉन्ग विद दैट हिमालय माउंटेन्स पिक कवर्ड विद द स्नो. मतलब उसके जो पिक्स है वो किससे कवर रहते हैं, हमेशा स्नो से कवर रहते हैं. एंड ब्रीमिंग रिवर आर द गिफ्ट ऑफ द हिमालय. ब्रीमिंग रिवर मतलब ऐसी नदियाँ जो 12 मंथ तक बहती रहती है, उसको वो भी किसकी देन है, हिमालय की ही देन है. फॉरेस्ट ऑफ तराई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट ऑफ द इंडिया, दैट इज तराई एंड दैट इज ऑल्सो द गिफ्ट ऑफ द हिमालय. Pilgrimage place in a Himalaya are अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड द सुमित लाइक नंदा देवी. अब हिमालय ने हमें पिलग्रिमेज प्लेस भी दिए हैं. फॉर एग्जाम्पल अमरनाथ, बद्रीनाथ, ये सारे क्या है, पिलग्रिमेज प्लेस है जहाँ पे हम जाते हैं फॉर द पीस ऑफ अवर माइंड. सिंस एंशियंट टाइम हिमालय हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया. हमारे पुराने टाइम से ही हमने हिमालय को बहुत इंपॉर्टेंट दिया है. Second important natural heritage of our India is rivers. River have been providing natural way since the ancient time. अब पुराने ज़माने से रिवर ने हमें क्या दिया, एक नेचुरल वे दिया है. फॉर एग्जाम्पल नाउ इट इज़ वी यूज़ एयरवेज और रोडवेज और रेलवे वेज टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बट इन एंशियंट टाइम वी हैव ओनली अ वन वे एंड दैट इज़ द वाटर वे एंड दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय अवर रिवर. इंडियन कल्चर हैज़ फ्लॉरिश ऑन द रिवर बैंक ऑफ इंडिया, द इंडस एंड द रवि. अब इंडियन कल्चर कहाँ से फ्लॉरिश हुआ है, दैट मीन्स कहाँ से उसने अपनी शुरुआत की थी और कहाँ से वो आगे बढ़ा है, एट द बैंक ऑफ द रिवर इंडस एंड द रावी. द रिवर लाइक गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द इंडस, द नर्मदा, द गोदावरी एंड द कृष्णा एक्सेट्रा हैज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस द पीपल ऑफ द इंडिया. मतलब हमारी जो अलग अलग रिवर है, गंगा है, यमुना है, नर्मदा है, इंडस, रावी, गोदावरी, इन सारी
और रिवर्स ने कहीं ना कहीं हमारे इंडिया को बहुत इन्फ्लुएंस किया है, बहुत हेल्प की है टू ग्रो एंड टू डेवलप with the other countries also. Rivers are the source of, अब रिवर का जो पानी है वो किस किस के लिए सोर्स बनता है? फर्स्ट फॉर द ड्रिंकिंग वाटर, ऑफ कोर्स वी ड्रिंक द वाटर दैट गिवन बाय आवर रिवर्स, भले हम उसे प्योरीफाई करके पीते हो या कुछ भी हो, लेकिन हमें वो दिया किसने है? दैट इज द गिफ्ट ऑफ द रिवर. सेकेंड, डोमेस्टिक यूज, मतलब हमारे घर के जो भी हाउस होल्ड चोर्स होते हैं वो हम कैसे करते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ द वाटर. इरीगेशन, एग्रीकल्चर विदाउट अ वाटर इज नॉट पॉसिबल, एज वी नो दैट एवरीवन. सो वी नो दैट इरीगेशन के लिए पानी के बिना हम नहीं चला सकते, तो वो भी हमें कौन देता है? रिवर. देन फोर्थ, इलेक्ट्रिसिटी. इफ वी वांट टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी वी नीड द water. So for generating electricity also we need our rivers. Then fifth is a waterway, as we have study in the first point only, that natural way, that is the river is used by us since the ancient time. मतलब हमें जो waterway दिया है वो हम आज भी यूज़ करते हैं और पहले से हम उसे यूज़ करते आए हैं. Beside this, man was dependent on the river to develop industries of. अब एज वी नो कि हमें पीने के लिए पानी चाहिए, फिर घर के काम करने के लिए पानी चाहिए, इरिगेशन के लिए पानी चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए तो हमें पानी चाहिए जो हमें रिवर प्रोवाइड भी करती है. इसके साथ साथ अगर ह्यूमन बींग को कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी हो तो भी उसको नदी किनारे सेटअप करनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल द इंडस्ट्री ऑफ क्ले यूटेंसिल, अगर आपको मिट्टी के बर्तन बनाने हैं तो उसकी इंडस्ट्री आपको कहाँ सेटअप करनी पड़ेगी? तो यू हैव टू सेटअप दैट बिजनेस इन द रिवर बैंक ओनली. वाई? बिकॉज उसके लिए जो क्ले चाहिए, उसके लिए जो भी सामान चाहिए वो आपको कहाँ मिलेगा? तो दैट यू विल फाउंड इन फ्रॉम द रिवर ओनली. देन फॉर द प्लास्टरिंग एंड फॉर द बिल्डिंग ऑफ द हाउसेज, मतलब प्लास्टरिंग के लिए, हमारे घर बनाने के लिए जो भी मटीरियल चाहिए वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? रिवर प्रोवाइड करती है. सो फॉर डेवलपिंग दैट इंडस्ट्री ऑल्सो वी हैव टू डिपेंडेंट ऑन अवर रिवर्स. रिवर वाटर हैव मेड ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस. अब नदी का जो पानी है उसने हमेशा हमारी लाइफ को क्या बनाया है? बहुत ब्यूटीफुल बनाया और बहुत प्रॉस्परस बनाया है. लैंडस्केप सीन्स एट ए डॉन एंड ए डस्क आर वेरी फैसिनेटिंग ऑन द साइड्स ऑफ द रिवर. अब लैंडस्केप जहाँ पर होते हैं वहाँ पे जो नदियों का पानी होता है एट द टाइम ऑफ द सनसेट एंड द सनराइज, डॉन में द सनराइज एंड डस्क मीन्स द सनसेट. मतलब इस टाइम पे जो नदी किनारे बैठकर हम जो सीन देखते हैं वो हमारे लिए बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं. सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ रिवर. दिस आर द सोर्स ऑफ इंस्पायरिंग फॉर द आर्टिस्ट एंड हैव एनरिच द लाइव्स ऑफ द पीपल बाय डेवलपिंग द एस्थेटिक सेंस. नाउ ये जो एट द टाइम ऑफ डॉन एंड डेस्क तो सीन्स जो दिखते हैं उससे जो हमारे आर्टिस्ट है उनको इंस्पिरेशन मिलती है. इफ समवन वांट्स टू मेक द पेंटिंग ऑफ द सनसेट देन ही विल गो एंड सिट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर. व्हाई? बिकॉज एट दैट प्लेस ओनली ही कैन गेट द नेचुरल व्यू. तो यहाँ से हमारे जो आर्टिस्ट है उनको क्या मिलती है? एक इंस्पिरेशन मिलती है, और वो इंस्पिरेशन वो अपने वर्ड्स में या तो अपनी पेंटिंग्स में उसे बताते हैं और उसके थ्रू हमें वो मैसेज देते हैं. सो दे आर एनरिचिंग द लाइव्स ऑफ अदर पीपल अलॉन्ग विद देयर ओन. Now the third important natural heritage of India is a vegetation. People of India are environment lovers since the ancient time. मतलब हमारे जो ancient time से हम Indians क्या है, हमेशा nature lover रहे, environmental lover रहे है. Its proof is their love and the affection toward flowers and the shrubs and the plant. इसका proof ये है that we are always loving our plants, our shrubs and the flowers. Human, animal, birds etc. dependent on a tree for their food. अब हम जो humans है, birds है, animal है, they all are dependent on what? For a food. They are dependent on the plants. They are dependent on our nature. Banyan, people tree and a basil are worship in India. हमारे इंडिया में जो बनियान ट्री है, पीपल ट्री है, तुलसी है, इनकी पूजा भी की जाती है. Cereals, pulses, oil-seed plant, green field, prosperous herb, packed forest, and medicinal plants have ultra enrich our life from time to time. Now जो हमारे pulses, जो oil seeds plant जो हमें मिलते हैं वो हमें ancient time से मिलते आ रहे हैं और आज तक वो हमें मिल रहे हैं. और उसके साथ साथ a prosperous herb packed forest, मतलब हमारे पास ऐसे forest भी है, ऐसी vegetations है जो पूरी तरह से pack है. मतलब हमारे पूरे forest किससे pack है? हमारे herbs से packed है. And the medicinal plant, हमारे पास बहुत सारे medicinal plant है जो बहुत सारी disease में useful रहे हैं. हरडे, आंवला, बहेड़ा, एलोवेरा, अडूसी, नीम एक्सेट्रा मेडिसिन मेड अवर लाइफ हेल्दी. अब ये जो हमारे मेडिसिनल प्लांट है उन्होंने हमारी लाइफ को क्या बनाया है? हेल्दी बनाया है.
Flower like rose, lotus, mogra, jasmine, damro, sunflower, champa, जुई, जैस्मिन एक्सेट्रा मेड ह्यूमन लाइफ वेरी ब्यूटीफुल एंड फ्रेगनेंट. अब हमारे जो फ्लावर्स है उसने हमारी लाइफ कैसे बनाई है, हमें हमारी लाइफ में फ्रेगनेंट लेकर आए हैं, ब्यूटीफुलनेस लेकर आए हैं. दे मेक अवर लाइफ ब्यूटीफुल. द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडिया इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेजिटेशन. इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी लाइफ चाहे सोशल हो या रिलीजियस हो, तो जो वेजिटेशन है वो कहीं ना कहीं अपना पार्ट वो विटल रोल प्ले करती है. कैसे, तो जैसे कि अगर हमारे घर में कोई पूजा हो तो हम फ्लावर्स लेकर आते हैं, अदर फंक्शंस हो तो हमारा घर किससे सजाते हैं, फ्लावर से सजाते हैं. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ अ वेजिटेशन. सो वेदर इट इज अ सोशल और अ रिलीजियस फंक्शन, द वेजिटेशन ऑल्सो अफेक्ट एंड इन्फ्लुएंस द human life. Now, the fourth natural heritage of our India is a wildlife. India is a natural lover since ancient time. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. The India is a lover of the environment and the nature. It is a country with the animal lover culture. ये हमारा जो country है India, that is a culture with the animal lover. मतलब हमें हमारे animal से प्यार करना सिखाया जाता है. टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्सेस, बियर, डियर, सैम्बर, rabbit, python, snakes, mongoose, lizard, porcupine, like many such organism are फाउंड एंड सीन. अब हमारे इंडिया में बहुत सारे एनिमल्स है, मंगूज है, लिजार्ड है, टाइप ऑफ स्नेक्स, पाइथन, दिस ऑल एनिमल आर सीन एंड फाउंड इन अवर इंडिया. एशियन लायंस इन द वर्ल्ड आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात. अब जो एशियन लायन है वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं और इंडिया में भी सिर्फ गुजरात में ही पाए जाते हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड लाइफ, वाइल्ड लाइफ इन अवर इंडिया. आवर रिलीजियस बिलीफ हैज गिव अस अ स्टैच्यू ऑफ अ गॉड एंड गॉडेस व्हीकल to some of the wild animal, tiger, peacock, alligator, eagles and etc. अब हमारे religious importance हमें क्या बताता है कि हमारे जो गॉड गॉडेस है, हमारे जो देवी देवता है, वो भी किसका यूज़ करते हैं अपने व्हीकल के लिए, तो वाइल्ड लाइफ मतलब वाइल्ड एनिमल्स का यूज़ करते हैं. सो हमारा रिलीजियस बिलीफ भी कहता है दैट वी हैव टू रिस्पेक्ट अवर वाइल्ड लाइफ. Our natural currency in a high value by having the figure of the 4 lion, horse and the bull. और हमारी जो इंडियन करेंसी है उस करेंसी के ऊपर भी 4 लायंस की पिक्चर है, हॉर्स एंड बुल की भी पिक्चर है. दैट मीन्स वी हैव टू गिव अ रिस्पेक्ट टू अवर वाइल्ड लाइफ. The wildlife reserves are created and law has been enacted for the protection of their lives. अब हमारी जो वाइल्ड लाइफ रिजर्व है उसमें हमारे जो लॉज है वो लॉज बनाए गए हैं. वाई? टू प्रिजर्व दिस वाइल्ड लाइफ. हमें हमारी इस वाइल्ड लाइफ को बचाना है. एज वी नो दैट अब हमारी वाइल्ड लाइफ बहुत कम होती जा रही है, बट जो भी है उसे हमें बचाना है. इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है, जो रिजर्व्स है, वो क्या करती है, नए नए लॉज बनाती रहती है सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट अवर वाइल्ड लाइफ. थैंक यू.